Hello, dear students. I'm sure most of you who are still in school or college have a dream to serve our nation by entering the government services, especially the elite civil services. Since childhood, you might have dreamt of becoming an IAS, IPS, or IFS officer in order to enter public service and to serve our country at some level or the other. But to realize this dream, you need to crack the elite UPSC civil services exams, which is often considered as one of the toughest competitive exams in the world. Cracking this exam requires months of planning, years of preparation, and without doubt, it requires incredible effort on your part to outsmart the competition. To add to this, UPSC exams are becoming increasingly unpredictable year by year. It not only requires you to master static concepts, but you also need a strong hold on current affairs with the ability to critically analyze these developments and interlink the current affairs with your static portion. Now, this is where you would need an expert educator or a good mentor to not just teach these essentials, but also handhold you during your preparation and help in your character building. This reminds me of what Swami Vivekananda once said, and I quote, "We want the education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet." So in order to build your character, to strengthen your mind, to expand your intellect, and more importantly, to help you stand on your own feet in this examination journey, what you need is a team of expert educators who can teach you the essential static concepts as well as simplify current affairs in order to help you prepare holistically for this exam. So to provide this opportunity to you, we at Unacademy are super excited to launch a brand new YouTube channel, UPSC Uday. This team of young and spirited educators will teach you using the bilingual or English medium, providing comprehensive coverage of your static and as well as the current affairs portion of your syllabus. I am confident they will make your preparation journey easier, and I am sure they will make you fall in love with the lifelong journey of learning. Now let me present the star educators one by one. First we have Navdeep Singh. Navdeep, can you introduce yourself to our viewers? थैंक यू। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम नवदीप है। डिग्री से नैनो टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, प्रोफेशन से नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ और पिछले 10 सालों से एस्पिरेंट्स की इंडियन पॉलिटी की जर्नी को सरल बना रहा हूँ। एनसीईआरटी से लेके करंट अफेयर्स तक सब एक ही क्लास में कवर करता हूँ। आपको थीम्स के साथ, पीवाईक्यू के साथ अपडेटेड रखता हूँ। तो मिलते हैं इस नए चैनल पे। लेट्स क्रैक इट टुगेदर गाइस। Thank you, Navdeep. वेलकम सर। Next we have Shubham Sisodia. Over to you, Shubham. थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, शुभम सिसोदिया नाम है मेरा। मैं हूं आपका पॉलिटी और करंट अफेयर्स का एडुकेटर। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, यूपीएससी उदय भाई अनअकैडमी चैनल पे मैं आपके साथ आने वाला हूं पॉलिटी और करंट अफेयर लेके। दरअसल पॉलिटी हर कोई पढ़ता है, लेकिन ज़्यादातर लोग स्टिक रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत तक। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि अगर आज के टाइम पे यूपीएससी हमें क्रैक करना है तो ये सिर्फ पॉलिटी का खेल नहीं है। मैं आपके साथ लेके आऊँगा पॉलिटी के साथ डीडी बसु, एनसीईआरटी विद सिनॉप्सिस, शॉर्ट नोट्स और कंपैरिजन ट्रिक्स के साथ पॉलिटी बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयार करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you, Shubham. Next up, we have Parvez Alam. Parvez, can you introduce about yourself to our viewers? हेलो गाइस, मेरा नाम है परवेज़ आलम और मैं पिछले 8 साल से यूपीएससी कैटेगरी में एजुकेटर हूं और सब लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी जो स्टूडेंट वाली रही है वो भी शेयर कर रहा हूं और जो टीचर वाली रही है वो भी शेयर कर रहा हूं। तो इस वाले चैनल पे हम क्या करने वाले हैं, मैं हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं, हिस्ट्री और उसके साथ आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को अब हम किस तरह से नए तरीके से पढ़ेंगे, आपको ये सोचना होगा कैसे। जैसे हिस्ट्री में जो मैंने अब तक नोटिस किया है, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डेट्स वगैरह याद करने में, या हिस्ट्री के जो कैरेक्टर हमारे रहे हैं उनके नाम्स वगैरह याद करने में। तो उसको हम रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे कोई डेट याद करनी हो तो किसी के बर्थडे से रिलेट कर दिया या किसी ऐसी इंसिडेंट से रिलेट कर दिया ताकि वो याद करने में आसान हो जाए। मैं एक फ़नी वे में भी नाम याद कराता हूँ, अपने कुछ स्टूडेंट के नाम रख देता हूँ हिस्ट्री के कैरेक्टर में और फिर उसको आप 2-4 दिन में यूज टू हो जाते हैं और वो याद हो जाता है। तो हम इस तरह से हिस्ट्री को थोड़ा सा फन वे में पढ़ने वाले हैं। लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बोरिंग आपको लगेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ में मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, फिर हम वो इस क्लास में अप्लाई करने वाले हैं। थैंक यू। Thank you, Parvez. Now we have Payal Sharma. Payal, can you tell our viewers about your background and experience? Sure.
Thank you, sir. So I am Payal from Punjab, and I've done my graduation and masters in economics from Punjab University, Chandigarh. And I have appeared for various competitive examinations, and I have worked with the Chandigarh Police as a cyber intern. And I am in this UPSC journey from last 2 years, and I have joined an academy here to make economies simplify for you. Thank you. Thank you, Payal. Thank you so much. Thank you, sir. Next up, we have Atif Mateen. Atif, why don't you introduce yourself to our viewers about your background and experience? थैंक यू सर. हाय गाइस, मेरा नाम है आतिफ, पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोटेक्नोलॉजी और मैं यूपीएससी के फील्ड में पिछले 5 साल से हूँ और मैं पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी. एंड इफ़ यू गाइस कंसिडर ज्योग्राफी काफ़ी डिफ़िकल्ट है तो आप हमारी चैनल पे आओ एंड विल मेक श्योर दैट यू गाइस स्टार्ट टू फॉल इन लव विद ज्योग्राफी. Thank you, Atif. Next, we have Sanjeev Yadav. Sanjeev, why don't you tell our viewers about your background and experience? थैंक यू सर. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संजीव और मैं यूपीएससी की इस जर्नी में पिछले 9 साल से हूं. मैंने 7 साल एज एन एस्पिरेंट इस जर्नी में बिताए हैं और 2 साल से मैं लगभग इस फील्ड में एज एन एजुकेटर के तौर पे हूं. सो दोस्तों, उस 7 साल के दौरान मैंने स्टेट सिविल सर्विस और यूपीएससी के 5 मेंस दिए हैं और अभी मैं 2 साल से एजुकेटर के तौर पर यूपीएससी के फील्ड में कार्यरत हूं. और दोस्तों, इस अनुभव के साथ मैं आपका यूपीएससी उदय के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं. देखिए दोस्तों, हमारे अनुभव जो कि इतने साल एज ए एस्पिरेंट मेरी पूरी टीम का जो अनुभव रहा, उसके साथ हम आपको वो गलतियां नहीं करने देंगे जो हमने इस फील्ड में की हैं. आपको वहां उन गड्ढों में नहीं गिरने देंगे जिस गड्ढों में हम गिरे हैं और आपकी जर्नी को डेफिनेटली हम स्मूथ बनाएंगे. और मैं यूपीएससी उदय के इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए ज्योग्राफी के मैपिंग पार्ट और इंडियन मैपिंग पार्ट और वर्ल्ड मैपिंग पार्ट को इंटरनेशनल रिलेशन के साथ आपको पढ़ाऊंगा. और यकीन मानिएगा, आपकी इस जर्नी को डेफिनेटली हम अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपकी डेफिनेटली इस जर्नी को स्मूथ करेंगे. जय हिंद दोस्तों. Thank you, Sanjeev, for that energetic introduction. Okay. It's a pleasure to have you on the platform. ओके, थैंक यू सर. And finally, we have Arunav Das. Arunav, can you please introduce yourself to our viewers? यस सर. सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अरुणव है और इस यूपीएससी उदय चैनल में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा. 13 ईयर्स से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, और 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को मेंटर करने का. और इस चैनल पे मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री इस तरह से पढ़ाऊंगा ताकि आप बहुत आसानी से रिटेन कर पाए हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को, और रिकॉल कर पाए एग्ज़ाम पे और रिप्रोड्यूस कर पाए अपने मेंस एग्ज़ाम पे. तो बस यही है, और जुड़िए हमारी जर्नी के साथ. Thank you, Arunav. Now, I'm sure viewers will have one question or one doubt. Why should they subscribe to a new channel? What will they get by joining a new channel? So, I think we should bring all the educators on board, and you guys should explain to the viewers as to how this channel is going to be different. Sure. What's the USP of the channel? What are the differentiators? राइट. So, let's bring all the educators on board and let them address you regarding how this channel will be a one-stop solution for your UPSC preparation. So we, Team UPSC Uday, will highly be focusing on covering from basics to advanced, which means right from NCERTs to the advanced level. Over to you, sir. सो बात जब अप्रोच की आएगी तो जैसा आप बताया अभी मैम ने कि हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं और एकदम जो एडवांस लेवल की बुक्स हैं वहाँ तक हम लोग मूव करेंगे. और इतना ही नहीं, रैपिड रिवीजन या फिर एग्ज़ाम के नियर बाई जो टाइम होता है जहाँ पर हमें मल्टीपल रिवीजन्स और फास्ट रिवीजन्स की ज़रूरत होती है, उसको हम आपको माइंड मैप्स, सिनॉप्सिस, शॉर्ट नोट्स, इन सब की सहायता से आपको हम बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिवीजन लाने वाले हैं. और दोस्तों, यूपीएससी की इस जर्नी में पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर एनालिसिस, आपकी बहुत हेल्प करेंगे. सो दोस्तों, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी. प्रीलिम्स में स्पेशली पिछले 10 साल के, बिकॉज 2017 के बाद से जो है वो ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ है. अब बहुत ज़्यादा डीप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो पूछने लगा है. सो यूपीएससी के इस ट्रेंड को एनालाइज करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बेस्ट डायरेक्शन गाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए. सो इस प्लेटफॉर्म पर हम ये भी करेंगे दोस्तों. ओवर टू यू सर. और हम हर साल या कभी कभी जो ट्रेंड बदलता है यूपीएससी का, वो आपके सामने लेके आएंगे ताकि आप एडवांस में ही इन सारी चीज़ों के लिए तैयार रह सको. ओवर टू यू सर.
थैंक यू सर। और इन सब के साथ हम एक काम ये भी करेंगे कि हम आपको मेंटोरिंग करेंगे इस चैनल पे, जो पॉसिबल नहीं होता है। जनरली हम देखते हैं यूपीएससी के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनमें होता नहीं है ये, पर हम ये करेंगे, हम ट्राई करेंगे इसके लिए। एंड विल ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग सम लाइव सेशंस आपके लिए। जो लाइव सेशंस होंगे उनमें हम ट्राई करेंगे आपके डाउट्स लेने के लिए, और हम ऑल्सो आपको ट्राई करेंगे कुछ नया पढ़ाने के लिए। तो ये सब रहेगा। एंड ओवर टू यू सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? यूपीएससी की जर्नी में किताबी नॉलेज, या आप कह सकते हैं आपकी जो किताब से या न्यूज़पेपर से जो नॉलेज आती है, उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक अच्छे मेंटर की और मोटिवेशन की। क्योंकि कई बार हमें, या कई बार आप कह सकते हैं रोज़ भी लगता है कि बस मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए साथ साथ हम आपकी जो बैकग्राउंड है उसको बनाते हुए चलते हुए, साथ साथ आपको मेंटरशिप करते हुए, साथ साथ आपको मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था यूपीएससी उदय चैनल का यूएसपी। अब हम देखेंगे कि इस चैनल का एजेंडा क्या है। यूपीएससी ओवर द टाइम कुछ टॉपिक्स जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डायरेक्टली हर साल पूछता जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं, एनसीईआरटीज में मिलेंगे। तो मेरा काम रहेगा आपकी ट्रेडिशनल के साथ साथ एनसीईआरटी की बेस स्ट्रॉन्ग करना, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना कर सके, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है, लेट्स टुगेदर क्रैक इट। जैसा सर ने बताया कि जब हम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमें एनसीईआरटीज़ पढ़नी होती हैं, हमें इन्हें किसी भी कीमत पे स्किप नहीं कर सकते। बट हम लोग ये भी जानते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, हमें बेसिक वाले लेवल से शुरू करके एडवांस जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं वहाँ तक हमें मूव करना होता है। तो जैसा सर ने बताया, पीवाईक्यू के साथ एनालाइज करके जो बेसिक एनसीईआरटीज़ वाला पार्ट है, सर उसको कवर करेंगे। उसके अलावा जो इसेंशियल बुक्स हैं हमें पॉलिटी के लिए, जो हमें पढ़नी ही पड़ती हैं, लाइक लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जैसे एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो रहा है, सिर्फ लक्ष्मीकांत सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर बेसिक सर कवर कराएंगे, और जो एडवांस पार्ट है या फिर जो टेक्स्ट बुक वाला पार्ट है, यानी कि लक्ष्मीकांत और डीडी बसु वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट को मैं आपके सामने लेके आऊँगा। यानी कि एक ही सेशन में आपको लक्ष्मीकांत और डीडी बसु दोनों का कंपाइलेशन मिलेगा। इससे इतनी बल्कि बुक्स को आपको खुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, ये आपको रेडीमेड कंटेंट मिलने वाला है। इसके साथ ही जब एग्ज़ाम के नियर बाई हमें रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें बहुत जल्दी मल्टीपल रिवीजन्स लगाने होते हैं। अब उसके लिए 850-700 पेज की एक बुक को आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। तो आपके लिए इस चीज़ को ईजी बनाने के लिए मैं आपको माइंड मैप्स और सिनॉप्सिस की सहायता से पॉलिटी को बहुत अच्छे से आपको याद कराने वाला हूँ। तो सर आप ये कह रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी वन स्टॉप सोल्यूशन हमारा चैनल है? एग्जैक्टली सर। बेसिक अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी भी कवर होगा, करंट अफेयर भी कवर होगा, एडवांस भी कवर होगा, लक्ष्मीकांत भी कवर होगा, डीडी बसु भी कवर होगा। सो पॉलिटी के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, हम आपके लिए यहाँ पर हैं। लेट्स क्रैक इट। पायल मैम, यूपीएससी उदय चैनल में हम इकोनॉमी को कैसे कवर करेंगे? Right. So economy, as aspirants know, that it's a little technical terms are asked in the UPSC paper. So technical terms को cater करने के लिए या फिर इनको simplify करने के लिए we at this channel are planning to come up with the NCERTs first. And NCERTs में भी पूरे chapters नहीं, we are planning to come up with it with the important terms that are mostly asked in this paper. जैसे इस साल भी there were a question about primary, secondary and tertiary sector. So that is basically as covered from the NCERT only. So इस channel में will cover economy right from the NCERT to the advanced level, but combining it with the current affairs also. So इस channel में आपको economy में NCERT भी मिलेगा, advanced concept भी मिलेगा, NCERT को भी हम एक simplified तरीके से cover करेंगे, plus इसमें हम current affairs and PYQ analysis करेंगे. Okay, so current affairs and static together here. Yeah, sir. Okay. So I think it's going to really help the aspirants. That's great. सो दोस्तों, यूपीएससी उदय चैनल पर आपको ज्योग्राफी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए, ज्योग्राफी में दो पार्ट्स रहेंगे, एक स्टैटिक पार्ट और एक डायनेमिक मैपिंग पार्ट, जो कि जियोपॉलिटिक्स और आईआर से रिलेटेड होगा। सो दोस्तों, अब आपको जैसे पता है कि यूपीएससी ने 2022-23 इनफैक्ट 21 से ही स्टार्ट कर दिया है कि वो स्टैटिक पार्ट पे भी काफ़ी फोकस कर रहा है। स्टैटिक पार्ट से इनफैक्ट लास्ट ईयर लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आए जो कि हार्डकोर ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। सो आपको स्टैटिक पे भी फोकस करना पड़ेगा, मैपिंग पार्ट पे भी फोकस करना पड़ेगा, और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड आईआर पार्ट जो कि ज्योग्राफी से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज्योग्राफिकल डायमेंशन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, उस पर भी फोकस करना है। सो फ्रेंड्स, लगभग ये कंप्लीट पोर्शन 25 मार्क्स का होगा यूपीएससी प्रीलिम्स में, और मेंस में भी इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी होगा। देखिए सर, दोस्तों, हमारे सर आतिफ सर आपको यूपीएससी के ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट बताएंगे। सर जी,
तो मैं आपके सामने लेके आऊँगा फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। अगर आप 2024 का पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे बल्क ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम दीज टू पोर्शंस, सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ एनसीईआरटीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली एनसीईआरटीज़ से आए थे। सो वी विल ट्राई एंड कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, प्लस देयर वर सम क्वेश्चंस जो मैपिंग के बिना नहीं हो पासे, तो वो मैपिंग वाला पोर्शन आपको संजीव सर बताएंगे। दोस्तों, मैपिंग वाला पोर्शन को कवर करने के लिए, वर्ल्ड मैपिंग को कवर करने के लिए मैं जियोपॉलिटिक्स का सहारा लूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर वर्ल्ड मैपिंग में इंडिया और चाइना के मैप के एरिया को हमें डिकोड करना है तो उनके जियोपॉलिटिक्स को भी समझना पड़ेगा, चाइना की पाम एंड फिंगर स्ट्रेटजी को भी समझना पड़ेगा हमें। और जैसे कि अगर इंडियन मैप को पढ़ रहे हैं और हम पाक स्ट्रेट, पाक बे और ये एडम स्टेट, इनको अगर पढ़ेंगे तो जस्ट अगर ज्योग्राफिकल लोकेशंस को पढ़ेंगे तो वो आपको जस्ट प्रीलिम्स में काम आ जाएगा, लेकिन मेंस में आपकी आंसर राइटिंग एनरिचमेंट के लिए, छोटे छोटे मैप्स बनाने के लिए, हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा एज 0.5 1 मार्क्स ऐड करने के लिए आपको उन मैप्स की यूज करना पड़ेगा मेंस आंसर राइटिंग में। और वो आप तब कर पाएंगे तब आपको उन लोकेशंस की रेलेवेंस का भी पता होगा। जैसे आपको ये पता होगा कि पाक स्ट्रेट और पाक बे के पास श्रीलंका और इंडिया के फिशिंग रिलेटेड इशू हैं, वहां पर एनवायरमेंटल इशू है बॉटम ट्रोलिंग से रिलेटेड, वहां पर इंडिया और श्रीलंका नेवी की क्लैशेज होती हैं क्योंकि वहां पर फिशरमैन से रिलेटेड भी इशू हैं। सो आपको कंप्लीट होलिस्टिकली डील करना पड़ेगा ज्योग्राफी को भी, जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड मैपिंग पार्ट को डील करने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहां पर यूपीएससी उदय के इस प्लेटफॉर्म पर आपको ज्योग्राफी का वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा ना कंप्लीट? यस, वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग एंड नॉट ओनली दिस, मैं आपके सामने एनिमेटेड वीडियोस लेके आऊँगा ताकि आप चीज़ों को फील कर पाएँ और आपको ज्योग्राफी बोरिंग ना लगे, और टफ तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सो दैट विल बी व्हाट वी विल प्रोवाइड यू इन ज्योग्राफी। संजीव सर और मैं आपके सामने पूरा सिलेबस कवर कराएंगे एंड दैट विल बी ऑल। सो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक इट। परवेज सर, यूपीएससी उदय चैनल में आप आर्ट एंड कल्चर और मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो बताइए उसके बारे में थोड़ा। सर, जैसे बच्चों की क्वेरीज रहती हैं या आज तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है, जैसे हम मुखर्जी नगर के उन छोटे छोटे कमरों का एक्सपीरियंस लेके एक स्टूडेंट लाइफ भी जिए हैं, फिर उसके बाद हमने टीचर एज एन एजुकेटर भी लाइफ जी है, तो उसका जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसे बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री को बोरिंग मानते हैं, खासतौर से यूपीएससी के एग्जाम देते टाइम मिडिवल इंडिया को सोचते हैं कि इससे तो बहुत कम आता है और बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन यूपीएससी ने इस बार दिखा दिया है कि उसने एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे हैं, तो फैक्ट नहीं छोड़ सकते हम, तो एक मैं फोकस करने वाला हूँ फैक्ट हमें याद हो जाए, यानी कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और फैक्ट भी हमारे पास हो। दूसरा, हिस्ट्री को बहुत सारे स्टूडेंट बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे सब याद रखेंगे, तो एक तो हम उसको ये करने वाले हैं, स्टोरी बना के पढ़ने वाले हैं। दूसरा, जो हिस्ट्री की डेट्स हैं और नाम हैं, उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो उनको भी हम एक फन वे में याद करने की कोशिश करेंगे। वो फन वे क्या रहेगा वो मैं भी सीक्रेट रखता हूँ, आपको बाद में बताएंगे जब हम पढ़ेंगे। तो मिडिवल इंडिया और आर्ट एंड कल्चर में खास तौर से जो मैं सोच रहा हूँ, एक तो पिक्चराइज करेंगे, उसको पिक्चर इस्तेमाल करेंगे, और एक कुछ दिन के बाद मैं उस साइट पे जा के भी वीडियो बनाऊंगा और उस साइट की लाइव लोकेशन आपको दिखाऊंगा, जो खास तौर से बच्चों को प्रॉब्लम होती है याद करने में। सपोज करो हम इंडिया गेट गए या किसी भी ऐसी साइट पे गए, तो मैं वाकई वहां पर जाके लाइव वहां की चीजें सब सिखाऊंगा, तो बच्चों को जो है वो रिकॉल करने में आसानी रहती है। तो आर्ट एंड कल्चर को हम इस तरह से आसान बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो अर्नब सर, आप जैसे मॉडर्न इंडिया पढ़ाने वाले हैं जी। तो उसमें आपका एजेंडा क्या रहेगा, ताकि हमारे जो यूपीएससी उदय चैनल है, इसके अलावा बच्चों को या एस्पिरेंट को कहीं बाहर ना जाना पड़े, वन स्टॉप सॉल्यूशन हिस्ट्री का यहीं पर मिल जाए। उसमें आप, और खास तौर से यूपीएससी में मॉडर्न इंडिया का बड़ा रोल है, मॉडर्न इंडिया खास तौर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से बनते हैं, तो आप उसको एस्पिरेंट को कैसे इजी बना सकते हैं? ओके, तो सर अगर हम देखें, हिस्ट्री का एक एडवांटेज है कि वो स्टैटिक है, पर वही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अगर स्टैटिक है तो डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, ये हमको पता है। तो इसलिए एस्पिरेंट्स काफ़ी बार ये सोचता है कि 10-12 किताबें पढ़नी पड़ती है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बीएल ग्रोवर भी पढ़नी है, आरसी मजुमदार पढ़नी है, और फिर बिपिन चंद्रा तो है ही। तो मैंने क्या किया है, ये सारी किताबें मैंने पढ़ ली है। तो अभी एस्पिरेंट्स को सिर्फ पढ़ना है स्टैंडर्ड बुक जैसे एनसीईआरटी या स्पेक्ट्रम, और बाकी जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो मैंने पढ़ ली है।
वो आपको मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे यूपीएससी उदय में। और ऑफ कोर्स आपके स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटीज़ वो तो मैं आपको आपके लिए आसान बना ही दूंगा इस चैनल पे। तो बस यही है मॉडर्न इंडिया का जो प्लान हमारे लिए हमारे इस चैनल पे। तो यही सब है। तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए यूपीएससी उदय में। और हम आपको ये बताना थोड़ी देर पहले चाहते थे, पर हमने एंड के लिए रखा है कि ये जो सब कुछ हम आपको स्टैटिक सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, इसके साथ थोड़ा सा हम करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाएंगे जो हमारे सबसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे। जैसे कि सपोज आज मीडिएवल हिस्ट्री में कुछ ऐसा करंट अफेयर्स में आ गया तो सर उसको कवर कर देंगे करंट अफेयर्स में। तो वैसा ही हर सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे। सो वन स्टॉप सोल्यूशन जाकि सो दैट आपका हो जाए यहाँ पे स्टैटिक और करंट अफेयर्स सब कुछ कवर हो तो जाए। सर आप ये कहना चाह रहे हैं अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ करंट आएगा तो जो ज्योग्राफी वाले हमारे सर हैं वो उसको Yes. बच्चों तक या एस्पिरेंट तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड कोई आएगा तो आप उसको डिलीवर करेंगे। Yes, बहुत बिल्कुल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस यही है। तो जुड़ते रहिए यूपीएससी उदय के साथ एंड लेट्स क्रैक इट। That's great. Thank you. So, as you heard from our star educators, this channel shall be a one-stop solution for your UPSC preparation. So, I urge you to immediately subscribe to this channel.